थक जाती है हथेलियां पर वो बताती नहीं। घर का हर कोना संवारती है पर कभी जताती नहीं। ये भी तो काम है, जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जिम्मेदारी की ओढ़नी पहने इस काम की कोई सैलरी नहीं। लेकिन अगर जिम्मेदारियां बराबर बंट जाएं, हर कोई मुस्कुराए और उस मुस्कान में सुकून की झलक नजर आए। चलिए ना, ऐसा सवेरा लाएं जहां देखभाल बस एक ही का काम ना रह जाए। बराबर हो काम, बराबर हो हम, बल्कि प्यार और साझेदारी इसकी पहचान बन जाए। शी लीड्स, विकसित भारत की ओर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। Hello and welcome viewers to this special broadcast on Sunset TV. My name is Tina Jha. Through this series of programs that we are doing on our channel under the theme She Leads, our effort is to highlight the vision, the resilience and the power of women worldwide. Women who are not just shaping the future but challenging stereotypes and breaking the barriers. So in a world which is still striving to achieve gender equality, She Leads is both a statement of progress and a call for action. So in this particular episode that we are doing, we are going to delve into a critical issue for gender equality, which is the unequal distribution of unpaid and care work. We are all aware that around the world, the invisible backbone of our societies is care work, which is nurturing children, supporting the elderly, maintaining the households. Yet, this essential work remains vastly undervalued and disproportionately shouldered by women. So I'm going to quote a figure from the International Labour Organization which says, women the world over perform over 3 times more unpaid care work than men, a gap that stifles their economic participation and perpetuates gender inequality. So along with my colleague Diksha and a stellar panel of guests, we are going to explore some progressive policies, government reforms and cultural change which can help us build a more inclusive and a balanced model for caregiving, where care is not just a woman's duty but a shared social responsibility. So let me begin the program by introducing our guests to you. Delighted to have with us Ms. Sumitra Mishra. She is the CEO at Mobile Creches. It is a leading early childhood development organization working to ensure young children are a national priority in law, policies, research, practices, capacities and communities. She holds a postgraduate degree in special education for persons with disabilities and over 20 years of experience in the development sector. Her direct work with disenfranchised communities of children and women informs her strategic programming, fundraising and policy influence. So can we have a huge round of applause please for Ms. Sumitra Mishra. Next to her is Malvika Devi ji. She's a member of parliament from Kalahandi, Odisha. She made history as the first woman member of parliament from this constituency. She's been active on various issues of parliament, including on the need for an increased participation of women in the labour force. Also, as a first-time member of parliament, she is keen on improving developmental outcomes such as education, employment and public infrastructure within her constituency. So please welcome her with a round of applause as well. And next to me is Ms. Kanta Singh. She is Deputy Country Representative, UN Women. She brings over 25 years of experience in advancing gender equality and women's empowerment. Ms. Kanta Singh has worked with national and international organizations to promote women in formal economy, sports and politics. Her last assignment was with the UNDP, where she spent 9 years. She's also a former national level volleyball player. She's a Chevening Gurukul Fellow from the University of Oxford. So please welcome Ms. Kanta Singh on the panel. बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और क्योंकि बात ऐसी हो रही है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर एक घर में एक परिवार में 2 लोग हैं तो क्या हम इस भार को एक साथ बांटने को तैयार हैं। अगर घर के बाहर काम है तो घर के अंदर भी काम है, लेकिन घर के अंदर के काम को हम जिम्मेदारी मानते हैं। उस जिम्मेदारी की कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन अक्सर भारत में हर घर में ये काम, ये जिम्मेदारी सिर्फ महिला तक सीमित रह जाती है। आपके भी घर परिवार हैं, आप भी उसे संभालती हैं। शुरुआत इसी से करेंगे। कांता जी, मेरा पहला सवाल आप ही से रहेगा। अगर भारत में शेयरिंग द लोड यानी कि इस भार को एक साथ बांटने की जिम्मेदारी को समझा जाए तो इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं आप?
थैंक यू दीक्षा, आई एम रियली प्लीज टू बी हियर टुडे। मुझे लगता है ये हमारा पूरा सोशलाइजेशन प्रोसेस पे मैं इसको लेके जाना चाहूँगी। जब हम छोटे बच्चे होते हैं और जिस तरह से हम माँ को या पिताजी को घर में काम करते हुए देखते हैं, मुझे लगता है वहाँ से सीख शुरू होती है हमारे कि क्या काम पुरुष का है और क्या काम महिला का है। उसी तरह से जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और उनको घर के काम में अपना हिस्सा लेना होता है, तो लड़कों को एक ख़ास तरह का काम दिया जाता है और लड़कियों को एक ख़ास तरह का काम दिया जाता है। क्योंकि आप लड़का या लड़की पैदा हुए हैं, इसलिए काम का निर्धारण होता है। इसलिए नहीं कि आप में कैपेसिटी क्या है या आप किस काम में बेहतर हैं, वो कोई पैमाना नहीं है उसको आपको दिए जाने का। उसका रिजल्ट ये होता है कि सारे समाज में एक स्टीरियोटिपिकल एक इमेज बन जाती है कि लड़कियां ये काम करेंगी और पुरुष ये काम करेंगे। इसमें गलती किसी की भी नहीं है कि जब बड़े होके पुरुष एक खास तरह से बिहेव करते हैं और महिलाएं घर की जिम्मेदारी को अपने ऊपर ओढ़ लेती हैं, क्योंकि उन्होंने वही देखा है, उनको सिखाया ही अलग नहीं गया है। और ख़ासकर भारत जैसे समाज में जब ये काम बहुत सही तरीके से डिफाइंड नहीं है, तो अगर महिलाएं ये उम्मीद करती हैं कि घर में पुरुष जो है उनका हाथ बटाएं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा सामाजिक एक दबाव है कि वो पुरुष से उम्मीद कर रही है कि वो उसका हाथ बटाए। पुरुष भी शर्मिंदा होकर काम करता है घर में कि कोई मुझे देख ना ले ये काम करते हुए, मैं बर्तन साफ कर रहा हूँ कोई देख ना ले मुझे। लेकिन ये हो सकता है कि पुरुष भी उतना ही एंजॉय करे घर में काम करने को, लेकिन उसको मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी सोच विकसित करने का मुझे लगता है कि हमारा जो समाजीकरण है उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और उसका भुगतान हम पूरी ज़िंदगी करते हैं। तो समाज को अगर हमें थोड़ा सा भी दीक्षा परिवर्तन करना है तो छोटे बच्चों को हमें ये सिखाना पड़ेगा कि घर का काम सबका काम। Mitra ji, you know, the fact that every woman has her own journey, also own set of challenges that each one of us has to go through. If you could share with us some of the challenges that you face in terms of sharing the load, both at work and in managing the household. Also, in the larger context of the Indian society and the challenges, if I may ask, particularly for the informal sector, what would be some of the most prominent ones that you would want to talk about? So, thank you. Delighted to be here, to be a part of this conversation which is very close to my heart, but also it's an important conversation to have across the country. Care, dekhrek, dekhbhal, care is universal. क्यों यूनिवर्सल है? क्योंकि at some point of our time we receive care. बीमार पड़े तो कोई हमारी देखभाल करता है, कोई और बीमार पड़े तो वी गिव केयर। चाहे बच्चे हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे मिडिल एज्ड हो, थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ वी आर ईदर गिविंग केयर और वी आर रिसीविंग केयर। घर के काम की बात हुई, बच्चों की देखरेख की बात हुई, बड़े बुज़ुर्गों की देखरेख की बात होती है, बीमार लोगों की बात होती है, बच्चे जो विकलांग बच्चे हैं उनकी देखरेख की बात होती है और कई तरीके से केयर होता है। लेकिन जैसे कांता जी ने कहा, कई बार ये केयर या देखरेख या घर परिवार के सदस्यों को देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है वो अक्सर महिलाओं के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि पुरुषों के ऊपर नहीं होता है, लेकिन वो जेंडर डिफाइंड केयर होता है। गाड़ी चला के अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी वो ज़रूर फैमिली के मेल मेंबर्स के ऊपर हो सकता है, लेकिन अगर स्पंजिंग करना है, दवाई खिलानी है, बेड सोर्स हो रहा है उसको क्लीन करना है, तो अक्सर वो महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। और छोटे बच्चों को गोदी उठा के मार्केट तक टहलने जाना वो ज़रूर पिताएं करते हैं, लेकिन सुसु पोटी अगर कर दिया तो माँ को पुकारते हैं कि भाई इसको चेंज करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कांता जी ने कहा कि ये शुरू से ये कंडीशनिंग हो जाती है और इतनी बुरी तरह ये कंडीशनिंग हमारे अंदर होता है दैट वी डोंट इवन रियलाइज दैट वी आर गेटिंग ट्रैप्ड इन दीज कंडीशनड बिहेवियर। जेंडर नॉर्म्स स्टार्ट वेरी अर्ली। ऐसा कोई नहीं है जिसको केयर गिविंग का जो बर्डन है वो छुआ नहीं हो। वी आर ऑल विमेन ऑन दिस पैनल, we've all done caregiving, we've all struggled with caregiving. आज मैं मोबाइल क्रशेस में
इस तरह के पैनल में आके बैठ के बोलती हूँ कि महिलाओं का केयर गिविंग लोड को कम करना चाहिए, बच्चों के लिए क्रशेस होना चाहिए, ताकि उस उम्र में जहाँ महिलाएं मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सिटीजन्स है इस देश में, उनको वो चांस मिलना चाहिए वर्कफोर्स में ज्वाइन करने के In लिए। fact, with your permission, if I can ask you a personal question, and I'm sure mothers across the world face this problem. You said बचपन से ही वो conditioning हो जाती है. As a mother also, we take it upon ourselves. अगर बच्चा बीमार है तो we are the ones who will apply for a leave and sit at home because we think we are supposed to do it. We are closer to the child, and fair enough. As a mother, it's our responsibility to be there when the child needs us. But then, as you also rightly said, we get trapped in that cycle. So each time the child needs us, the father is never there. I mean, let me not generalize, but mostly. So are we in a way also promoting that inequality that is affecting us? Well, we all, whether it's men or women, we all live in a patriarchal society, and women are not excluded from the patriarchal conditioning. जो ये मैस्कुलिनिटी का जो नॉर्म्स है कि पुरुष लोग एक तरह से बिहेव करेंगे, महिलाएं भी उसको परपेचुएट करते हैं. बट व्हाट कैन हेल्प ब्रेक दिस circuit to share the load is an awareness of both men and women. Absolutely. And society in general, to say that we have to take the first step to break that क्यों mothers will take a leave, some days the fathers can take a leave. It's not about going reverse, but it's about sharing, equitable distribution. It can take, you can equally share that load. Coming to your question about informal workers, asangathit महिलाएं, the main point I think I wanted to make is that care burden, poor economic status या rich economic status से कोई वास्ता नहीं रखता है. Care burden equally affect करता है. The difference is that people who have resources, middle class families, upper middle class families, have resources to employ help, care services, or access to information to question some of these norms. In the informal market, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करना एक चॉइस नहीं है. Working for livelihoods is a matter of survival. Therefore, they will work. Construction workers, domestic workers हमारे घरों में आते हैं काम करने के लिए. Waste pickers, कूड़ा बीनते हैं. घर में बैठकर home based workers तुरपाई करते हैं. तरह तरह के unorganized work sector है जिसमें महिलाएं काम करती हैं, और वो जो उनका काम work itself is invisible in the larger narrative कि ये भी कोई काम है. एंड नेचुरली जब उनका काम ही इनविजिबल है, लेबर ही इनविजिबल है, तो उस लेबर के साथ जो ये जो बर्डन है कि बच्चों का देख रेख हो, घर के कामकाज, घरेलू जिम्मेदारियां जो है वो भी इनविजिबल होता है, क्योंकि उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई एंटाइटलमेंट्स नहीं है कि वो उसको एक्सेस कर पाए, उनको वो मिल पाए वो पर चीज़. मैम कहीं ना कहीं एक मानसिकता बदलने की भी ज़रूरत है कि अगर मैं ऑफिस से सारे दिन का काम करके घर आया हूँ और अगर मेरी पत्नी होम मेकर है तो उसने मेरे पूरे घर को बनाया है, पूरे घर को संभाला है, उसने जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन हम शायद ये समझने लग जाते हैं कि वो तो सारा दिन घर पर ही थी. तो कहीं ना कहीं दोनों साइड से मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो पूरा दिन कितना काम करती रही और उसमें मेरा योगदान कितना रहा. मालविका जी, मैं आपके पास आ रही हूँ. एक संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी आपके पास है, आप उस संसदीय क्षेत्र की बेटी हैं, लेकिन आपका अपना घर परिवार भी है. थर्ड जनरेशन के बाद पहली बार किसी ने कालाहांडी में कोई महिला नेतृत्व देखा. निश्चित रूप से जब कोई महिला नेतृत्व आता है तो मातृत्व का भाव आ जाता है और शायद वो महिलाएं एक जुड़ाव बनाने लगती हैं. वो समझती हैं कि ये तो हमें समझती होगी क्योंकि इसकी ज़िंदगी कुछ हमारे जैसी ही है. आप संसदीय क्षेत्र में जाती हैं, लोगों से मिलती हैं. क्या कुछ ऐसे संसदीय क्षेत्र से उदाहरण आप हमें बता सकती हैं जहां आपने देखा हो या आपके बताने के बाद कुछ बदलाव आया हो, जहां पर लोग ये समझने लगे हों कि ये हमें एक साथ मिलकर करना है क्योंकि ये जिम्मेदारी हम दोनों की बराबर है? सबसे पहले तो जब मैं शादी करके गई, जी. मैं कालाहांडी की बेटी कम बहू ज़्यादा हूँ. वहाँ पे जब मैं स्टार्ट किया तो हमारे कालाहांडी में, जिनका आप भी जानते हैं कि उड़ीसा में एक है जिसको हम कहते हैं बहू माँ. So the first time when I got married and I went to my in-laws house, my father-in-law was calling me Ma. So I was like, okay, he's calling me Ma.
that itself, I'm telling you how Kalahandi system functions, or how we actually, this whole thing of when it starts as a child, is that you're treated as a ma. When you're a woman, you're a bahu, you're a beti. The betis and bahus of Kalahandi are called mas. That means they themselves are taken as caregivers, as nurturers of the house, but not in a negative way at all. Because my father-in-law, जब मैं शादी करके गई, my family is in fact very patriarchal. हम ऐसे हैं. Though my father has always pushed me आगे and made me do everything. I've done MBA. I studied. In fact, I was told that okay, Rajput family. So I was told कि शादी होएगी, then God knows whatever they decide. And I was like, okay, then why are you making me study so much? शादी कर दो, खत्म करो. Why are you forcing me to get good marks and पढ़ाई करो. So my father said, no, till you get married, you have to always know that you should be able to stand on your 2 feet. Because nobody knows किसके future में क्या लिखा है. तो आपको हमेशा इतना capable होना चाहिए. बेटी होके भी, you should be as capable as my son to stand on your 2 feet. When I went to Kalahandi and everything happened, my father-in-law was the first one who pushed me out to go with my husband for campaigns. He said, you are going, she will also go with you. So my maid asked कि खाना कौन बनाएगा हजूर? He said, हम मिलके कर लेंगे, हो जाएगा. But she will go with you. He was the first one who pushed me out with my husband, my father-in-law. कि you also have to take part in everything, because जब गाँव में जाते हो, जैसे आपने कहा, खाली आदमी नहीं मिलते, औरतें भी मिलती हैं, बहुएं भी मिलती हैं, तो उनकी बातें कौन समझेगा, इसलिए बहू जाएगी. बहू समझेगी उनकी बातें, बहू will take care of the women and the men and the children, while you will do whatever you're supposed to do. That is how it started first time for me. A lot of times when I go to villages, the women now come full strength. Okay, she has come, so we need to tell her, हमारे घर में ये problem है, हमारे घर में वो problem है. Earlier it was very different. वो हम सब जानते हैं कि पहले जब आदमी मदद करता था अपनी वाइफ की, उसको हम क्या बोलते थे, जोरू का गुलाम. पर अब वो चेंज हो रहा है. Men are helping the wives and men are appreciating and building houses together. Kalahandi has a lot of examples. When I went there was this family in Kalahandi, in Junagadh, where the woman is the leader of the house. Her husband walks behind her. Oh. And she's one of my biggest strengths in Kalahandi, because she leads. She says, Hajur, हम यहाँ जाएंगे आज and let's finish off this area. And I am totally reliant on her. I say, okay, you make my chart for today. And the men in that area say, madam, हम भी तो हैं. I said, no, because एक women के साथ एक empathy आ जाता है. Men have more of a sympathetic attitude, but women have an empathetic attitude. So when she is with me, she has a different view of everything. She doesn't talk कि उसके लिए ये कर देते हैं. She says, Hajur, उसको ये चाहिए, हम कर दें क्या? There's a complete different attitude in everything. Nowadays, the girls in Kalahandi, I feel so much of pride in the fact that the girls of Kalahandi are going everywhere, making names for themselves. Today, so many OS students have come from Kalahandi and so many of them are girls. And it is changing. But like Kantaji said, and you said, ma'am, that it is a slow change and it starts in the house. It has to start in the house. हमारे घर में ये बात start होएगी, तभी वो आगे बढ़ेगी. Absolutely, you're right. So the change will happen at multiple levels. We often talk about the policy approaches, the government reforms, but the most important is that cultural mindset and the norms in our daily lives which need to change. So I think for me that's more important. I'll focus more on that. So I'll begin by asking you that change has begun to happen, because otherwise we would not be sitting here and talking about a topic which is so close to our heart, because even though it's a struggle every day, but the fact that everyone is noticing it, everyone is working towards sort of getting rid of that imbalance that we see every day around us, and we in a way without even knowing are part of also propagating that imbalance. So Kantaji, if I may ask you that question, what is driving that change? What successful approaches have you seen in recent years which are encouraging more men particularly to come forward and share the care work with women? दो तरह के एक्सपेरिमेंट्स मैं देख रही हूँ टीना, जो चेंज भी जो हुए हैं बहुत बड़े लेवल पे. एक तो राष्ट्रीय जो नीतियाँ हैं, जैसे केयर वर्क है. आई थिंक भारत एक अकेला देश है जहाँ पे पब्लिक फाइनेंस के ज़रिए इतना बड़ा बच्चों की केयर का प्रोग्राम चलता है, ICDS जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. तो भारत सरकार ने बहुत सालों से बहुत पैसा खर्च करके और देश में इस तरह के प्रोग्राम लाए हैं जिसमें हर तबके की महिला, गरीब महिला, गांव की महिला जो है खासकर, वो अपने बच्चों को वहाँ से वहाँ छोड़ सकती है और काम पे जा सकती है, चाहे वो नरेगा पे जाए, चाहे खेत में जाए, चाहे वो किसी और काम पे जाए.
उससे क्या हो रहा है कि आदमियों के लिए ये आसान हो गया समझना कि औरतें काम कर सकती हैं, चाहे वो इनविजिबल हैं, लेकिन ये कि महिलाओं का देश की उन्नति में बड़ी भागीदारी हो सकती है, इस बात की रियलाइजेशन है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो शहरी महिलाएं हैं उनके, देखिए मैं ऐसा मानती हूँ कि हर लड़की जो यहाँ बैठी भी है उनके सबके सपने हैं, वो भी चाहती हैं कि जैसे मालविका जी ने भी कहा कि पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं हम भी आगे बढ़ें, हमारे अपने सपने हैं। तो जब वो काम करने की इच्छा जाहिर करती है और पुरुष को भी ये इच्छा है कि घर में पैसा और आए और हम सबकी घर के में परिवार की सबकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, तो ये ज़रूरी है कि काम बांटना पड़ेगा। इसका एक और भी फ़ायदा हुआ कि बातचीत जो सब जगह होने लगी है, पैनल डिस्कशन होने लगे, देश में प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं G20 में कि यहाँ पे केयर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो राष्ट्रीय ज़रूरत भी है और राष्ट्रीय उन्नति के लिए बहुत आवश्यक भी है कि महिलाएं काम में भागीदारी दिखाएं। कुछ बच्चे जो बाहर गए, इंडिया से बाहर गए, मुझे याद है मेरी चाची पहली बार मेरे भाई के पास गई और वहाँ से रोते हुए फ़ोन आया कि ये बर्तन मांज रहा है घर में, मुझसे देखा नहीं जा रहा। हमने कहा तो क्या हो गया इसमें, वो लड़की भी तो काम करके आई है, नई नई शादी हुई है। और मेरे भाई ने कहा मुझे फ़ोन लेके चाची से कि हमारा आपस में एडजस्टमेंट हो रखा दीदी, और माँ को नहीं करना चाहिए, ये हमारे बीच में फिर तकलीफ़ होगी हमको। लेकिन हमारी जो समझ है उसमें ये लगता है कि लड़के आके इतनी बड़ी नौकरी करके और ये घर का काम कर रहे हैं, वो जो लड़कों ने परिवर्तन लाया है, क्योंकि वाइफ भी चाहिए उनको पैसे कमाने वाली और घर का हालात भी ठीक चाहिए। ऐसे देखते हुए मुझे लगता है जब वो इंडिया में आते हैं इस बात को बहुत साधारण तरीके से करते हैं कि मैं ग्रोसरीज लाता हूँ, वो घर में ये करती है, मैं बर्तन करता हूँ, वो खाना बनाती है। तो माँ बाप को थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन ये भी समझ में आने लगी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहू या आपकी बेटी काम करे तो वो उसको बढ़ावा देते हैं। अपनी बेटियों के लिए थोड़ा सा अलग एक नज़र है उनकी कि मेरी बेटी सारा काम करती है, इसलिए माएँ भी थोड़ा सा परिवर्तन मुझे लगता है उनको परिवर्तित हो रही हैं। धीरे धीरे पढ़े लिखे लड़के जिनका एक्सपोजर है वो देखते हैं कि अगर आप साथ में मिलके काम नहीं करेंगे तो आप हस्बैंड वाइफ रहेंगे, आप साथ ही नहीं बन पाएंगे। साथ ही बनने के लिए ज़रूरी है कि साथ दिया जाए, और साथ चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे परिवार हो, चाहे केयर वर्क हो, चाहे जो भी हो, उसमें साथ में जब काम करेंगे उसका मज़ा कुछ और ही है। और मुझे लगता है ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आ रही है, बट नेशनल लेवल पे मुझे लगता है ये एक ज़रूरत है और उसमें महिलाओं की भागीदारी से देश की तरक्की बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी। इसका भी सरकार को भी ज्ञान है और मुझे लगता है महिलाओं को तो शुरू से ही था, वो तो काम करती ही रहती है। मैम आपने बिल्कुल सही कहा। अमूमन जब हम पति या पत्नी को समझाते हैं तो कहते हैं कि ये एक स्कूटर है जिसके दोनों पहिए हैं जो बराबर चलेंगे, और मुझे लगता है कि अगर व्हील अलाइनमेंट सही है तो वो रोड पे बिल्कुल स्मूथ जाएगा। तो क्यों ना हम शेयरिंग द लोड में एक साथ आगे आएँ, क्योंकि ये वो पहिया है जो हमें एक साथ चलाना है, तभी गाड़ी सही से चल पाएगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि माँओं का ये ख्याल तो ज़रूर होता है कि हमारी बेटियाँ काम कर रही हैं, लेकिन वो खुश भी होती हैं कि हमारे दामाद काम कर रहे हैं। वहीं अगर जब बात बेटे और बहू की आती है तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि बेटा काम क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं माँओं को भी समझना होगा कि यदि हमने काम किया, अब बदलाव का समय आ रहा है, तो अब आने वाली जनरेशन में ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी लेवल की हम बात कर रहे हैं सुमित्रा मैम, आपको क्या लगता है पॉलिसी लेवल पे ऐसी कौन सी चेंजेस आ सकती हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रही महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद होंगी या उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ख़ास करके इस समय के लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है इस पे चर्चा करना, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के से हमारा एक ऐलान है कि हम विकसित भारत के और हम बढ़ते जाएं, और इस विकसित भारत की जो कल्पना है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि इट हैज़ टू बी विमेन लेड डेवलपमेंट। When he says women-led development, it doesn't include the men. It basically means positioning women as equal participants, as leaders. It doesn't mean that it's going to exclude the men. And खास करके मैं अपने young साथियों को ये दोबारा reinforce करना चाहती हूँ कि women-led development is about equal participation towards that progressive nation, towards that country that we are imagining. अब इस context में
जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स है उनकी जो इनविजिबिलिटी है उसको हम सरफेस में कैसे लाएं, बिकॉज विमेंस लीडरशिप इज़ नॉट ओनली एट द ग्लास सीलिंग्स. एक्चुअली लीडरशिप का जो पाइपलाइन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टिकी फ्लोर्स. एंट्री लेवल जॉब्स में women get pushed out. Only when they enter smoothly and they are enabled to remain in the workforce, only then you are going to talk about breaking the glass ceiling barriers at the leadership level. So the focus has to be at the entry level, and at the entry level there is this whole unorganized sector. In that sector, I'll pick from what Kanta also mentioned कि पूरे दुनिया भर में the Anganwadi system is the largest public system that Government of India supports for supporting children under 6 years of age. और वो पब्लिक सिस्टम चाहे कितने भी उसमें कमियां हो या तकलीफ हो उसके इम्प्लीमेंटेशन में, इट इज़ द कंट्रीज बेस्ट एसेट फॉर young children, number one, for their families, especially their mothers and adolescent sisters, and for those Anganwadi workers who come from similar marginalized communities who work in this. So there is really a triple engine benefit for the Anganwadi system, and therefore to imagine that Vikshit Bharat, can we reimagine Anganwadi to say कि ये 3 से 4 घंटे का न्यूट्रिशन और प्री स्कूल एजुकेशन के साथ साथ विमेंस वर्कफोर्स को बढ़ावा देने के लिए 3-4 घंटे के जगह इसको 7 से 8 घंटे का हम एक्सटेंड कर दें. एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को हम एक्सटेंड कर रहे हैं. ऑफ कोर्स उसमें एडिशनल रिसोर्सेज और बजट की चाहिए होगी, क्योंकि सबसे जो वंचित बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो आंगनवाड़ी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और उनके घर के, उनके रहन के जगह के सबसे नज़दीक होता है ये, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल प्रोग्राम. Of course, increasing that means, expanding that means some kind of financing. And here I will look at Malvika ma'am to say कि मैम आपको पता है पिछले 5 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर हम बजट देखें तो छोटे बच्चे, 6 साल के कम उम्र के बच्चे जिनको ये केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट जो चाहिए, पूरे जीडीपी का 0.01% एनालिसिस हमने जो किया है ये हमारा एक्सपेंडिचर है. और जो हमारा जो पार्लियामेंट में जो बजट पास होता है उसका एवरेज 0.7% छोटे बच्चों के लिए बजट है. सो क्लियरली अगर हम एक ग्लोबल लेवल का हम एक इंडिकेटर देखें तो वी हैव टू मूव टूवर्ड्स स्पेंडिंग एटलीस्ट 1% ऑफ द जीडीपी. 1% ऑफ द जीडीपी, 0.01% से 1% अचानक नहीं हो जाएगा, बट धीरे धीरे इंक्रीमेंटली हमें वहाँ जाना चाहिए. क्यों? बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आज के जो इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स है वो कल विकसित भारत के वर्कफोर्स बनने वाले हैं. 25 साल में वो आपसे बड़े हो गए होंगे, है ना, तो वो वर्कफोर्स होंगे, तो उनके इन्वेस्टमेंट आज चाहिए. विकसित भारत अचानक नहीं बनेगा. विमेंस वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ. सो सेकेंड रीजन इज द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन. थर्ड रीजन हाउ दिस बजट विल गिव अस अ रिटर्न इज दैट when we are deploying and increasing this budget, we are immediately creating more jobs for women to enter the formal care sector and be recognized as care workers. So there are many ways in which policies can change, but I'm picking the probably the lowest hanging fruit to say build on an existing system rather than ask for new things. Absolutely, you're right. So infrastructural and program development is something that is the need of the hour, and we hope the policy makers will at least capitalize on the low hanging fruit that Sumitra just mentioned, but that is something that we leave them to do. We'll come back to doing things you and I can do, you know, in terms of changing mindsets and bringing about that societal change. So Malvika ji, this question for you is for you, especially in context of the trap that we weave around us ourselves. It relates to our cultural and family values. So when we are talking about equitable gender policies, how do we ensure that there is a fine balance and we are able to navigate well
between the traditional values without offending our families and our societies, but at the same time doing what we want to do. So in line with the contemporary goals that we have for ourselves, but at the same time following the traditional values, so that fine balance. Okay, so something that my grandmother always said to me. She was a very independent lady. My grandfather was a doctor, he was in the INA. He was the earning man. And my grandmother was a spending woman. But she didn't spend on shopping, she didn't spend on anything, she built houses. So, I mean, I've seen it from that level. Women and men can work together, like Kantaji said, when you have that unison with each other. You're not a husband and wife, you're a team. When you become a team, you make sure that you're developing not only your house, in the sense that aap ghar bana rahe ho, sab kuch kar rahe ho, but your children develop at the same level. And this obviously is going to start at the home level. It doesn't start anywhere else. Because whatever I've seen in Kalahandi now, जो Kalahandi में पहले situation थी, it was very different when I got married and went there. When I used to go out, people used to look, अच्छा, she's also come out today. Now people are very happy to see me and they put me in front. No, you go, आप चलो, आप आगे करो, you do this. So that has changed. My husband also taught me something very nice, Kantaji, actually, because he was a member of parliament. जी. And I, politically, yes, it was the first time for me. I was a proper housewife when I started, helping my husband and my father-in-law in whatever social work and whatever I could do. So the first time when they said, we are offering you the ticket, they asked him and he said, yeah, give it to her. She's very fond of doing all this. She'll do a very good job. So I looked at him first. I said, kya bol rahe hain? What is he saying? What is he saying? So he said, no, you can do it. So then the first time when I went back to Kalahandi and the first work came to me, the first meeting, I said, I got ready and I came out and I looked at him. I said, you're not coming with me? He said, you are the member of parliament, not me. Absolutely. You will be going there. Absolutely. And that itself, made me feel that, okay, this is my work. I am supposed to of do it. course. And he supports me. So in the morning, jab ghar mein, there are 100 people who come every day to meet us. So when I see them and they all obviously want to meet him because he is the one who has been there throughout. So and then my husband says, no, you finish your work with her. आपका जितना काम है वो आप खत्म कर लो, मैं यहाँ पे मिलूँगा आपको. And then he does whatever socializing and what his work is to be done. So that has started at ground level also. In the villages, children, only women used to go and collect water. पता नहीं आप लोगों के देखा है कि नहीं, पर हमारे गांव में पहले लड़कियां ही जाती थी. आजकल when I'm driving back and going to villages, I see boys carrying buckets, which is actually starting at that level, which is a very big thing. I mean, girls are sitting in shops and selling things where no one was allowed, Kanta ma'am. First, I never heard of girls sitting in shop as shop runners. Only the men were allowed to do and the women were carrying buckets. Now that, that there is a role reversal which is happening. Slowly ho raha hai, but it will happen. Modi ji has got 33% of us trying to get us into the parliament. That's the reason I'm here also. So it starts at the policy level, right in the center. Then it goes to the state level. Like we have a Subhadra Yojana in Orissa, which gives 10,000 to every woman in Orissa to do whatever you want to do with it. Which is a very big thing for them because उनको पता ही नहीं कि pocket money क्या होती थी पहले. They never got pocket money. जो भी बचा है वो घर में ही खर्चा करना है. Here they are allowed to do whatever they want to do. So many, and women have become very intelligent. I mean, we have been very intelligent. Now we are showing that we are intelligent. So they're doing things. So you know that one lady after the Subhadra Yojana, she came to me, Diksha ji, and she told me very clearly. She said, पता है मैंने 10,000 पैसे यहाँ वहाँ खर्चे नहीं किए. मैंने कपड़ा खरीदा, उसके ब्लाउजेस बनाए, उसको बेचा, वो 10,000 का जितना बन गया. So that is the brain. Multiply करते हैं. I mean, she instantly multiplied, and she told me that I've got this much now, and I'm investing that back and getting more. So her husband was very happy. Why will a poor man, का villager, not be happy? You tell me. अगर वो कमाए भी, and at the same time, because she's stitching, the man is helping the kids and doing the kids का काम. And this is at the village level. लेकिन मैम ये तो बात हुई कि नीतिगत हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो क्या बदलाव रहे, वो क्या तरीके रहे जिसने पुरुषों को अब आगे लाया कि वो आगे आए, वो एक अच्छा सपोर्ट बने और वो जो देखभाल का ये भार है उसे बांटे. दीक्षा, पुरुषों के लिए ये ज़रूरत बन गई है. अगर आप घर को बचाए रखना चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि घर में जो महिला आपके साथ है आप उसकी बात सुने. आप उसके, अगर वो बीमार है, अगर उसको देखभाल नहीं की जाएगी तो किस पे असर होगा? पूरे परिवार पे. क्योंकि आप अपनी वाइफ को जब घर में लेके आते हैं तो ये भी समझाते हैं कि मेरे माँ बाप हैं, इनकी सेवा ज़रूर करनी है. अब जब महिला को आते ही साथ में विरासत में मिलते हैं माँ बाप भी और घर में कोई डिसेबल्ड भी है फैमिली में, ये उसको आते ही समझा दिया जाता है कि मैं तो काम पे जाऊंगा लेकिन आप ध्यान रखिएगा. अब पुरुषों को उनके
का जो निर्भरता जो है महिलाओं पे वो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से महिलाओं के सपने उनको बहुत बाध्य कर रहे हैं कि आप काम करिए ना, आप पढ़ाई की है तो आप जाके बाहर कमाइए भी, क्योंकि सारे सपने एक तनख्वाह से तो पूरे नहीं होते हैं या एक कमाई से तो नहीं होते हैं। पर कमाई के अलावा मुझे लगता है कि जो हमारे सपनों में भी जो उड़ान होनी चाहिए, अगर हम उसको नहीं लेंगे उस उड़ान को, तो हमें रोज़ाना तकलीफ़ होगी, हमारा मन जो है वो खुश नहीं होगा। और पुरुष इस बात को जानते हैं कि एक तो काम खुशी से किया जाए और एक काम मजबूरी से किया जाए, दोनों में फ़र्क है अभी। तो मुझे लगता है कि ये सामाजिक ज़रूरत आन पड़ी है अभी, और आर्थिक ज़रूरत भी आन पड़ी है कि घर के दोनों ही व्यक्ति अपना बाहर काम करें, घर में साथ में शेयर करें। बदलाव एक दूसरे को देख के भी आता है। ये ऐसा नहीं है कि पुरुष शुरू से ही बाहर काम करके और घर में हाथ बटाना नहीं चाहते थे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि सोशलाइजेशन प्रोसेस ऐसा था कि उनको शर्म आती थी घर में काम करते, जैसा उनको सिखाया गया है। और अगर इस बात को, सिखलाई को थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो पुरुषों को भी उतना ही मज़ा आता है। घर में खड़े होके आधी गाजर छील रहे हैं और आधी खा रहे हैं, या मटर छिलते छिलते मटर खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको बुरा लगता है वो काम, कोई बड़ी बात नहीं है। बस वो उनके ऊपर कोई दबाव ना हो। कल मैं कोई एक इंटरव्यू पढ़ रही थी किसी लड़की का, उन्होंने कहा जब मेरी सास यहाँ नहीं होती है या मेरे ससुर यहाँ घर पे नहीं होते हैं तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश है मेरे साथ मदद करने में, लेकिन जैसे ही बड़े लोग आ जाते हैं घर में तो उनको शर्म आती है ये काम करते हुए। हरियाणा में तो दीक्षा पहले ऐसा था कि बच्चे को उठाने में फादर बहुत संकोच करते थे कि देख ना लेंगे, अच्छा बहुत अपने बच्चे को प्यार कर रहा है। तो बेसिकली ट्रेनिंग इतनी इनसेंसिटाइज कर देती थी पिताओं को, तो उसका पूरा का पूरा असर जो है पिताओं के पूरी ज़िंदगी पे पड़ता था कि आप उसको अमानवीय भावनाओं से जोड़ देते हैं कि प्यार दिखाना जो है वो अच्छी बात नहीं है, पब्लिक में नहीं दिखाइए उसको। कई सारी ऐसी सभ्यताएं हैं या मैं कहूँ सिविलाइजेशंस हैं या देश हैं ऐसे जहाँ पे अगर एक लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ आराम से खड़े हैं या हाथ कडल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, अगर उनको घूरा जाए तो वहाँ उस बात को बुरा माना जाता है। हमारे यहाँ अगर प्यार कर लिया जाए खड़े होके तो उसको बुरा माना जाता है। ये थोड़ा सा सामाजिक कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा है हमारा कि हमारे यहाँ इस बात को बुरा माना जाता था कि लड़के घर का काम कर रहे हैं, पर वो बदल रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बहुत सारे यंग बच्चे जो बेंगलोर जाके रहते हैं, हैदराबाद जाके रहते हैं, उनके सामने कोई चॉइस भी ख़ास नहीं है, क्योंकि लड़की हो सकता है कई बार बहुत ज़्यादा टफ जॉब में हो, उसकी ज़्यादा मीटिंग्स हो सकता है वो टूरिंग जॉब में हो। मेरे जैसे लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, तो क्या कीजिएगा, आपको काम तो घर में करना पड़े, भूखे थोड़ी रहेंगे आप। तो ये सब चीज़ें ज़रूरत आन पड़ी है और उसमें पुरुष जो हैं भागीदार बनने को तैयार हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये सामाजिक जो सोशल नॉर्म्स हैं ये थोड़े से बदल रहे हैं और जिसका फ़ायदा दोनों को होगा, सिर्फ लड़कियों को नहीं होगा, लड़कों को भी होगा। हो सकता है उनको कुछ ऐसा पैशन मिल जाए घर में, किसी को कुकिंग का अगर मज़ा आता है तो उसको हो सकता है वो पैशन मिल जाए वहाँ पे। You're right. I think all of us today are seeing that change. Yes, It's begun to absolutely. happen in our families. I think what needs to be done is to accelerate it to the next level, which is the Absolutely. community level, the societal level. Absolutely. So if I may ask you, Sumitra ji, on some of the community-based solutions that can work to this effect, how is your organization in particular helping informal worker families, because the challenge for them still is much bigger, balance income generating work with the care responsibilities? What is the model that you are following, perhaps that others can also imbibe for it to extend to other organizations? सो मोबाइल क्रशेस का ये काम 50 साल से ऊपर हो गया है इस काम को करते हुए मैम। काम बहुत सिंपल है कि जहाँ शहरी बस्तियों में महिलाएं निकलकर काम पर जाती हैं या कंस्ट्रक्शन साइट में लेबर कैंप्स होता है, टी गार्डन में लेबर कॉलोनीज़ होते हैं, फार्म एग्रीकल्चरल फार्म शुगर केन फील्ड में सीजनल लेबर आते हैं, ईंट भट्टी में लेबर आते हैं काम करने के लिए, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माइग्रेंट लोग बसते हैं और पूरे परिवार काम करते हैं। अक्सर बच्चे भी उनके साथ काम पे जाते हैं और चाइल्ड लेबर का वो भी एक मसला वहाँ पर होता है। उन जगहों पे मोबाइल क्रश संस्था क्रश
सरकार के साथ मिलकर या कम्युनिटी के साथ मिलकर क्रैश चलाते हैं। मोबाइल मतलब ये नहीं है कि हम एक बस में क्रैश जगह से जगह ले जाते हैं। मोबाइल मतलब ये मतलब है कि जो माइग्रेंट मूविंग पॉपुलेशन जहाँ पर होते हैं उनके बच्चों के लिए क्रैश चलाते हैं। छोटे बच्चे 6-8 साल से कम उम्र के बच्चे 8 से 10 घंटा क्रैश में आते हैं। खाना पीना, पढ़ाई, हेल्थ, हाइजीन, दवा दारू सब कुछ उनका 8 से 10 घंटे के लिए होता है। और ये ट्रेंड केयर वर्कर्स जो होते हैं, बहुत दक्षता का काम है, बहुत रिस्की काम है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ ये काम किया जाता है। स्ट्रैटेजी की बात आपने करी, 3 लेवल की स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ। ऑफ कोर्स बच्चों के लिए इक्विटेबल early childhood development has the highest potential for building gender equitable societies, because you start unconditioning, deconditioning and reconditioning some of the gender equitable norms when children are 6 months old, 8 months old, 1 year old, इकट्ठा करके, number 1। नंबर 2, जब हम समुदाय में काम करते हैं, पिताओं का भागीदारी और पिताओं का लीडरशिप। केयर वर्क में महिलाओं का दक्षता है और महिलाएं लीडर्स, हम बैठे हैं ना बात करने के लिए यहाँ पर। पिताओं का लीडरशिप, बच्चों जच्चा बच्चा के बारे में बात करना, हेल्थ हाइजीन के बारे में बात करना, टॉयज़ खिलौनों से खेलने के बारे में, खिलौने बनाने के बारे में बात करना, हम फादर्स को एंगेज करते हैं कम्युनिटी लेवल पे रोल मॉडल्स बनाने के लिए। लास्ट स्ट्रैटेजी, मोबाइल क्रैशेस 50 साल में 90 to 95% हमारा वर्कफोर्स, विमेन वर्कफोर्स, 5 से 7% मैक्सिमम हमारे मेन एंगेज थे पूरे वर्कफोर्स में। आज के डेट पर 75% आर विमेन एंड 25% आर मेन इन द वर्कफोर्स। क्यों? If you have to change gender strategies, if you have to change gender norms, change begins at home. Absolutely. Malvika ji, when we talk about collaborative efforts and community solutions, when we set a goal as ambitious as a Viksit Bharat, it's important for every stakeholder to come together and work. So a public-private partnership is often spoken about developing any sector. Do you think the private sector needs to come in big when we are talking about building an equitable care system also? And in the Indian context, how do you see the private sector Yes, driving? like what Sumitra ma'am is running, the creche, something like that. When we have companies setting up big companies in small villages, like Kalahandi is becoming a mining zone now. So we have a lot of companies, Vedanta is coming, everyone's coming there. So they set up hospitals and they say we've done our CSR, ho gaya. But that's not where it should end. They should make sure that they have creches there, because there are women working in those areas. There are women working in those factories. So they have to make sure how are they going to support those women working there. They should have proper creches for the children so that they can be taken care of when those companies and those factories are being set up. And that is something that my husband and I have started doing with them, because we are making sure that we are visiting those places. And we tell them that your CSR doesn't finish at a hospital and a school. It has to make sure that the women who are working in your factories are also taken care of. आप आदमियों के तो कर दे रहे हो, you doing whatever you're supposed to do for them, but you have to balance that. Private sectors actually at the end of the day, when they are taking up a village, they are trying to do a lot of work. चाहे वो कुछ भी बोल लें, they are developing the area, but at the same time they are hampering the area in a lot of different ways. And for them to make sure that they give back to the society in different ways, rather than just saying school, college खोल दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, that's not the only thing. Right. They have to go deeper. So now actually this company which is coming up, we've told them that how many women are you keeping? I asked them, acha, so you know, he said, acha ma'am, you're to an MP, no? So do you think we should keep, I said, aap batao na, should we keep women workers also in the office? So he said, yeah ma'am, let's keep them in the hospital. And my husband is smiling at me, you started this. Because that is how it starts. मैम ये तो प्राइवेट सेक्टर्स की बात हुई, आपने कहा कि ऐसे शुरुआत की जा सकती है, आपने विजिट किया, आपने CSR की बात की, आपने कहा आप किसी के घर गई और आपने कहा कि आप दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने एक बार आपकी रिस्पेक्ट के से आपके सामने वो बात माननी शुरू कर दी, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और ज़्यादातर क्या होता है कि महिलाएं ये कहती हैं कि आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ, क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मैं आपको काम करने नहीं दूंगी। मैम ये समाज में सोच बदले,
इस लाइन के बाद सामने से ये लाइन आए कि नहीं सिर्फ तुम ही क्यों करोगी, मैं साथ में बराबर करूंगा, क्योंकि हम दोनों को मिलकर ये काम एक साथ करना है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। ऐसे में कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर आप खास तौर पर अपने क्षेत्र में क्या कर रही हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्राइवेट वर्कर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द होम मेकर्स और वर्किंग हार्ड इन देयर होम्स। तो आप उनके लिए कैसे बदलाव ला रहे हैं? NGOs. So those NGOs together with the government schemes, whether it's the Anganwadi, the SHGs, they all have started getting men also into the system. So it's not only the women who are doing the care system. Right. They have started saying कि हम आदमियों को भी, like Sumitra ji just said, कि when I have men working, the number is increasing on its own. So they themselves are also starting it. Whether it's Doordarshan, which has programs, or whether it's air ka news radios, there is a lot of development which is happening at the ground level now. I mean, I'm not just saying it for the sake of saying it on this forum, but when I actually go to villages, I am seeing a difference. Now, I don't know, is it because they have a women MP, so they're doing it just to show me, and then things change behind my back, or it is actually happening there. There are a lot of times that earlier only men used to come to me with grievances. Now I have women coming to me, and they don't come with, मेरे husband ने मुझे मारा, मेरी wife ने मुझे मारा. That's not it. They come, madam हमारे घर के सामने ये रोड खराब है. And I ask them, I say रोड कहाँ से कहाँ जा रही है? And that woman will tell me, मैडम 500 मीटर की रोड है, ये यहाँ से यहाँ तक है, उसको आप ठीक कर दो. I mean, I never thought that women will come to me with problems like that. Yeah. I mean, even as, I mean, I'm saying it as a very negative thing. I mean, even my mindset was like, the men will come with the road and the women will come with the women issues. Right. But it's not. It's not the same anymore. Women are coming to you. Ma'am, वो bridge टूटने वाली है. They call me up and they say that electricity pole, ma'am, KV इतना चाहिए. And I'm looking at him, I'm like, okay, what, कितना KV चाहिए? And that woman is telling me, this is the amount of KV we need for this. So you please get it uploaded or you get a transformer put. So which is very intelligent. And it is not just, I'm not just saying it because Kalahandi for me is developing. Kalahandi and Nuapara are 2 districts under me. We have forest areas, we have tribal areas, we have areas where people are completely uneducated, where women are doing all the work in the house. वो सुबह चूल्हा भी लगा रही है, रात तक चूल्हा का काम चल रहा है, वो सब हो रहा है, वो सब भी है. मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ बदल गया है, पर बदल रहा है. बिल्कुल मैम, एक कदम अगर विकास की ओर बढ़ाना है तो हम सबको साथ आगे आना होगा, और मुझे लगता है शुरुआत हमें खुद से करनी होगी. एक घर से शुरुआत होगी, तभी एक समाज एक साथ आएगा, और मुझे लगता है तभी एक राज्य, एक देश और ये पूरी दुनिया एक साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाएगी. हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो आपसे कई सवाल पूछना चाहते हैं, तो फ्लोर इज़ ऑल योर्स. नमस्कार, मेरा नाम अनुप शर्मा है, मैं अंबेडकर विश्वविद्यालय से हूँ. मेरा कांद्रा मैम से क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय समाज में ज़्यादातर मध्यवर्गीय परिवार रहते हैं, और मध्यवर्गीय जो परिवार होते हैं उसमें ज़्यादातर जो माता पिता हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, क्योंकि कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है कुछ भी. बट आप क्या सजेशन आप उन मध्यवर्ती परिवारों को देना चाहेंगे कि वो अपने घर की महिलाओं को वो सशक्त बनाने में हेल्प करें, और किस तरीके से जो उस घर की महिलाएं हैं वो अपने आप को और सशक्त बना सकती हैं, क्योंकि इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है. परंतु ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो परिवार है मध्यवर्गीय वो पढ़ने नहीं देता, बिकॉज कि आपको क्या करोगे पढ़ के. तो आप किस तरीके से आप उन्हें सुझाव दे सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये भी थोड़ा सा मायने बदल रहे हैं इसके. मैं अपना एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूँगी. मैं रिसेंटली, हमारे एक दोस्त हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश में, तो हम उनके यहाँ, हमारा साथ में कार्यक्रम चल रहा है जिम्मेदार मर्दानगी करके, सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स. सो वो मुझे दिखाने ले गए अपने हेडक्वार्टर्स में जहाँ पे क्रैश चल रहा था, और ये सब मध्य वर्ग के लोग हैं जहाँ पे पुलिस में जो काम करते हैं. तो मैं थोड़ी देर वहाँ थी, देख रही थी किस तरह का क्रैश बनाया है पुलिस हेडक्वार्टर में. वहाँ सुमित्रा, सभी लोग जो पुलिसकर्मी हैं पुरुष, वो लोग अपने बच्चों को लेके आ रहे थे. तो मैंने उनको बड़ा क्यूरियोसिटी हुई थोड़ी देर बाद कि आप ला रहे हैं यहाँ बच्चों को? उन्होंने कहा जी हमारी वाइफ भी पुलिस में है, तो वो ड्यूटी पे है इस वक्त, उनका चौराहे पे ड्यूटी लगी है, तो बच्चों को और कौन लाएगा. तो मध्य वर्ग में जो फ़र्क आएगा, और ये जितने भी और मैं खुद मध्य वर्ग से हूँ, तो जितने भी परिवर्तन आए हैं वो एक दूसरे को देख के और ज़रूरतों के हिसाब से आएंगे. परिवारों को भी आजकल ऐसा नहीं है कि सास या माँ अपनी बेटी को या बहू को काम नहीं करने देना चाहती है. पैसा सबको अच्छा लगता है, खासकर वो कहेंगे नहीं घर में कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप काम कर सकती हैं, बच्चों को और मुझको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, काम कर सकती हैं आप.
शुरू में थोड़ा सा महिलाओं को तकलीफ होगी जो ऐसे घरों से निकलने में जहाँ पे नॉर्म्स नहीं बदले हैं, लेकिन वो समय समय की बात है। किसी दिन महिला लेट होगी, बस लेट आई या दफ्तर में मीटिंग ज़्यादा देर तक हो गई, तो जैसे मैंने पहले कहा खाना तो घर पे बनेगा ही ना, फिर सास ही बनाएगी चाहे माँ बनाएगी, तो वो या कभी पति बनाएगा। तो ये ज़रूरतों के हिसाब से होता है, एक दूसरे को देख के होता है, और शिक्षा डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इनेबलर है। लेकिन एक सुमित्रा ने एक बात कही थी, और हम बहुत जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग पे काम करते हैं, अगर उसी 1% को सुमित्रा आप 2% ले जाएं इन्वेस्टमेंट को जीडीपी के केयर वर्क के लिए, उसमें डिसेबल्ड भी है और एल्डरली तो हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं अभी संख्या, सभी देशों में बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी बढ़ेंगे, उनकी देखभाल का जो काम है। भारत में सिर्फ 7 करोड़ नौकरियाँ और आ जाएंगी, और 7 करोड़ नौकरियाँ कोई कम नहीं होती हैं, उसमें पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। तो ये मध्य वर्ग में जो परिवर्तन भी आएगा, जब बच्चों को नौकरियां मिलने लगेंगी, और वो सिर्फ सरकारी नौकरी ना हो, ये भी नौकरियां केयर वर्क वाली भी नौकरी हो, और वो फॉर्मल हो जिसमें सेफ्टी नेट हो आपके सामने, तो मुझे लगता है परिवर्तन तो अब इम्पॉसिबल है उसको रोकना। ये बहुत जल्दी आएगा, और अच्छा होगा आप सबके लिए कि अगर आपके किसी के भी जो भी इस क्षेत्र में काम करने के सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत है। My name is Jia Sharma and I'm from Dr. B.R. Ambedkar University. So my question is to Kanta ma'am. So ma'am, as a woman trying to lead change in today's world, how do you deal with the pressure to change the traditional gender roles in the aspect of caregiving? थैंक यू जिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यूएन वुमेन का फॉर्चुनेटली सारा का सारा काम इसी पे है कि हम जो भी काम करते हैं वो महिलाओं को उनकी बेहतर स्थिति में लाने के लिए करते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रोग्राम है, मैम को मालूम है हम एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं शी लीड्स करके, लेकिन हम घर से शुरुआत करते हैं। हम उसको, हमारा एक ग्लोबली बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको चेंजिंग सोशल नॉर्म्स करके। सोशल नॉर्म्स में जितनी भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि महिलाओं को पीछे रखती हैं, हम उनको परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, और उसके बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारे सस्टेन प्रोग्राम्स, ऑडियो विजुअल फिल्में, तरह तरह के टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि परिवर्तन हो आपके सोचने के में, चाहे वो एडवर्टीजमेंट्स हो या मेन स्ट्रीम फिल्म्स हो, सब के जरिए हमारा इनपुट रहता है कि महिलाओं की भागीदारी को एक सशक्त तरीके से और बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखाया जाए। एक तो हम वो काम करते हैं, दूसरा हम सरकारों के साथ मिलके बहुत सारा काम बजट्स पे करते हैं। तो जिस इन्वेस्टमेंट की सुमित्रा भी बात कर रही थी और मैं भी बात कर रही थी, इन्वेस्टमेंट बढ़े महिलाओं के लिए और महिलाओं के हर एस्पेक्ट के लिए। लड़कियां ना केवल काम ज्वाइन करें, वर्कफोर्स ज्वाइन करें, बल्कि काम में रहें, टिकें वहाँ पे, वो वर्कफोर्स से ड्रॉप ना हो, और फिर तरक्की भी करें। हम ये चाहते हैं कि हर महिला लीडरशिप पोजीशन में भी जाए, ताकि जब महिलाओं की समस्याओं की बात हो तो महिलाएं वो बातें खुद करें, कोई और उनके बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हो। पार्लियामेंट में आप देखेंगे मालविका मैम जहाँ बैठती है, कई बार महिलाओं के मुद्दों पे पुरुष ज़्यादा बात करते हैं। दूसरी बात और भी है, हम जो काम हम करते हैं वो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो महिलाओं की है, ताकि आप जैसी लड़कियाँ इनको स्किल करके और वर्कफोर्स में हम आपको आगे बढ़ा पाएँ। बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा विमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे लेके। तो मेरा काम ऐसा है जिसमें मेरे पर्सनल और ऑफिशियल दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। मेरा पर्सनल भी यही एक नीति है कि जब तक लड़कियां आगे नहीं आएंगी तब तक देश आगे नहीं आएगा, और मेरा प्रोफेशनल भी काम ऐसा ही है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है मेरे काम में। My name is Soumya Rajput. I am from Dr. Ambedkar University, Delhi. And my question is from Madhvika ma'am. Namaste ma'am. Ma'am, you are at such a good position in the society, but still I am observing that you are carrying pallu on your head. You are following the traditions and customs of India. So my question is that does your family told you to follow the traditions and customs, or it's all your own free will? Acha, hi Soumya. Namaskar, very good question, which I've been asked a lot of times. So this is something I'll tell you. The fact that I'm sitting here with a pallu on my head shows you that how tradition goes along hand in hand with women leading. Because I haven't been forced to take a pallu, but it is something that is done in the house, and I don't feel any problem in taking a pallu. It is not making me look like someone who's supposed to be on the roadside not doing anything,
or uneducated or anything. This is not a symbol of, my pallu is not a symbol of me not being liberated. It is the way I talk with my pallu on my head is a system that says that I am sharing both together. My mother-in-law has never told me. In fact, when I got married, हमारे घर में सब साड़ियाँ पहनते थे. So I thought मुझे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए बोला जाएगा. My mother-in-law took me shopping and she bought me 40 suits. And she said, Bahu, you can wear whatever you want. You can do whatever you want. But as a cultural tradition, like you had also asked me, Tina, earlier, tradition of women or men is something that is yours. That is yours to choose. What puja I do, what I don't do, what culture I follow, what traditions I follow. It should be the way it is, that we should be allowed to choose it ourselves. I can go out without my head covered, but I choose to cover my head while sitting even in the parliament. And Kanta ji has seen that so many times. For all the programs I've attended, I've always had my head covered. Because it's just something that I feel happy doing. I don't have a thing कि मैं tradition के against जाऊँगी, तभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, I'm a woman leading. That's not how it is. I can follow my traditions. At the same time, I can lead and say that I'm there for everything that is required out of me. So I love the way that I can balance, and I love the way that women should learn and should know कि हाँ, we can balance. Yeah, we are very good. In fact, you know, Kanta ji, a lot of times when I started as a woman politician, people used to say feminism. I said I'm equal. I don't need to say कि मुझे ये चाहिए कि तो मैं ये कर सकूँगी. I am at par with men. Absolutely. And that is how it should be for all of us. My name is Lakshita and I am from B.R. Ambedkar University. My question is to you, Kanta ma'am. How can we overcome the stereotype where women are supposed to do certain things after an age to be someone's wife, and men ain't held at the same expectation that you are gonna be someone's husband, so do this or do that? जी, थैंक यू लक्षिता, बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरा वैसे फेवरेट भी सवाल है ये. देखिए, मुझे लगता है हमने शादी को, और मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं करनी चाहिए, पर शादी को हमने बहुत एक ज़्यादा ही तुल दे रखा है एक बात को. ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है शादी. शादी एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है. और क्योंकि हमारे समाज में, कुछ समाज की जो ये भी एक उम्मीद रहती है कि सब बच्चे बड़े होंगे और शादी करेंगे. लेकिन गोइंग बैक टू व्हाट मालविका मैम सेड, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. आजकल बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे यंग लोग ये चूज़ कर रहे हैं कि वो शादी नहीं करेंगे, और दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली ओके, सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट फोर्स्ड ऑन देम. एनी चॉइस है, शादी करना या ना करना, वो बदल रहा है लक्षिता. और वो इसलिए क्योंकि यंग लोग चूज़ कर रहे हैं शादी करना या ना करना. तो कोई भी स्टीरियोटाइप को चेंज करना जब होता है, जब स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाए, और हम सब इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए और कलेक्टिवली इकट्ठे बैठ के अगर किसी को मजाक उड़ाने की बजाय अगर हम इन मुद्दों के ऊपर बात करें, यंग लोग, कि हम क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं और उसमें हमारी क्या भागीदारी होगी, तो ये परिवर्तन जल्दी होगा और आपके हक में होगा. क्योंकि जैसे मैं महिलाओं की बात कर रही थी, यंग लोगों के भी अपने अलग मुद्दे हैं. उनको अपने मुद्दों का आपस में बात करना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म पे रेज करना चाहिए. शादी का जहाँ तक मामला है, आप किसी भी तरह से चूज़ कर सकते हैं. चाहे तो शादी करें, चाहे तो ना करें. ठीक है, मुझे नहीं लगता थोड़े दिनों के बाद ये कोई बड़ी बंदिश रहेगी. आपकी मर्जी है. ठीक है, और अगेन इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस. Anybody else? We have, yes, one last question. आप सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम भूमि है. मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ. तो मेरा आप सबसे ये सवाल है, जैसे कि आप सभी डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें कैसे महिलाओं से ये उम्मीद करी जाती है कि उनको एक आइडियल माना जाता है, एक आइडियल वुमेन, कि वो शांत हो, हमारी बात माने, बिल्कुल सच बोले. अब लेकिन महिला जब अपने भी नहीं, उनके परिवार वालों के कंफर्ट जोन से बाहर निकले और कुछ काम करे, चाहे वो अमीर परिवार हो या मिडिल क्लास या कोई भी गरीब, तो उसमें लोग अपने ऑनर में ले लेते हैं, अपने फैमिली के उसमें ले लेते हैं कि ये महिला कैसे काम कर रही हैं. अपने सोचते हैं कि हमारा ऑनर ख़राब हो जाएगा अगर बाहर सोसाइटी में जाएगा ये कि हमारे घर से एक महिला काम कर रही है, वो आगे बढ़ रही है. उनके हिसाब से जो उनके घर के जो मेल्स हैं, अगर वो काम करे तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा, बट कोई वुमेन करे तो उनकी फैमिली पे वो आ जाएगा कि कैसे कर रही हैं वो. तो इस पे आप लोगों का क्या विचार है? आप करना चाहिए. भूमि, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से देती हूँ. व्हेन आई वाज ऑफर्ड द टिकट फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माय हस्बैंड सेड यू विल स्टैंड. सो आई सेड नो, लेट्स आस्क मम्मा. पहले मम्मा हाँ बोलेंगे तभी मैं हाँ बोलूँगी, माय मदर इन लॉ. बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड, व्हाट इफ शी सेज नो, लाइक व्हाट इफ शी सेज नो, बहू यू कांट स्टैंड फॉर MP, माय सन विल स्टैंड, यू विल नॉट स्टैंड.
she said, you go stand and I am going to walk with you every step of the way. So it starts in your house. चाहे हम कुछ भी बोल ले, जब तक हमारे घर के लोग वो फील नहीं करेंगे वो नहीं होगा. क्योंकि my mother-in-law, the day of my voting, she was sitting in the mandir while I was sitting in front of the TV and seeing कितने votes आ रहे हैं. But she was in the temple more than my mother. So you know, though my mother is obviously my mother, but she as a mother-in-law was so sure that my bahu has to win. She is going to take our name forward now along with my son. So my mother-in-law has never said it's him or you. She always says तुम दोनों को करना है. Even now when I go to her for anything, she says both of you will take a decision. Till it's not both, nothing happens. And I feel चाहे कुछ भी बोल ले कांता जी, जब तक घर में नहीं स्टार्ट होता, नहीं सही है मैम, वो स्टीरियोटाइप हमारे से ही बदलेगा. जी. Now when you all grow older, when you get married or don't get married, when you have kids or don't have kids or have families, you will be the ones who will decide how your families function, how people look at your women and your children and your daughters, because only you can do that, nobody else can do that. And हमारा generation अब वो change देख रहा है जो हमारे पहले वाले generation ने नहीं देखा है. I never saw my father taking my brother or someone in the godi and walking around the house, but my husband does everything, my brother does everything, and maybe next generation will do even more. Yes, absolutely. So after that very engaging conversation, let's wrap up the program with concluding comments from all our speakers. But very quickly, if you want to summarize and give a crux of the discussion, also in context of what should be the way forward, what is it that you want everyone to prioritize as the most achievable goal? So to begin with you, Sumitra ji. अगर हम अपनी देश की प्रगति और उन्नति का कल्पना करते हैं तो मेरा ये मानना है कि ये जितनी भी बातें आज हमने किया है चॉइस को लेकर या महिला सशक्तिकरण को लेकर, उसमें इक्वल भागीदारी वो गरीब परिवारों के और वो वंचित परिवारों के बच्चे और महिला और लड़के और लड़कियां भी हैं. कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी, कोई भी कैंपेन, कोई भी डिसीजन, कोई भी चॉइस हम करें, हम अपनी प्रिविलेज को नज़र में रखें और सबसे जो वंचित, जो सबसे इनविजिबल, सबसे एक्सक्लूडेड है, उसको अपने मन में रखकर डिसीजंस ले और चॉइस ले. लीव नो वन बिहाइंड. दैट्स द कॉल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल and of the UN, and therefore we have to build a society that includes everyone, including in the caregiving. Your vision when we are striving for a society where we leave no one behind, what should be the most immediate priority? So for me, what I feel very genuinely from my heart is that it starts at home. We have to start it. Don't say वो करेगा तो मैं करूँगी तो वो भी करेगा. That is how it should be. We usually like to follow. When we say she leads, we lead. We can lead and we very well lead, and we lead the whole society to go to a different change. What Sumitra ji just said, Modi ji has a dream where he says Antarudaya, the last man standing in the last line should get everything. And he makes it a point that when he meets us, he keeps telling us that again and again and again. And that has actually become, I don't know how many MPs and MLAs, but it's become imbibed in us. That हमको last man standing का ध्यान रखना है, last woman standing का ध्यान रखना है, and that is how it should be from us, from our hearts, for everybody. And I would just say कि please make sure that you start it. कांता जी, अंतिम पंक्ति के उत्थान की बात इन्होंने कही है. उत्थान हो रहा है. She will lead, we will lead, society will lead. लेकिन उस समाज की कल्पना आपकी नज़र में क्या होगी जब सब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि सब इस लोड को शेयर करना शुरू कर दें? देखिए, जिस सामाजिक नॉर्म्स की हम सुबह से बात करते आ रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत एक सिंपल तरीका है. और आज के दिन मैंने उसको टूटते देखा है हरियाणा में. और हरियाणा से आती हूँ इसलिए रूट्स की बात हो रही थी. 2010 के जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो आपने देखा होगा गीता फोगाट को एक मेडल आया था. रातों रात हरियाणा में 200 अखाड़े बन गए लड़कियों के लिए. आज के दिन 50% मेडल्स हरियाणा में लड़कियों के लिए आते हैं, और देश के लिए भी 50% मेडल्स हरियाणा के लोगों के आते हैं, लड़कियों के खासकर. तो सोशल नॉर्म्स को टूटते, चेंज होते हुए बिल्कुल समय नहीं लगता. तो उनको अपने लिए बर्डन ना बनाएं. जस्ट डू व्हाट एवर यू वांट टू डू. नोबडी शुड बी टेलिंग यू व्हाट यू कैन नॉट डू. एक्चुअली जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड से आई वांट टू डू दिस. क्योंकि नॉर्म्स चेंज आपसे होंगे सबसे. एक जो भी काम आप करेंगे, आप अगली 10 लड़कियों के लिए रास्ते बना रहे हैं. तो ये जिम्मेदारी भी है और ये पॉसिबल भी है. तो लिविंग नो वन बिहाइंड से पहले
आप इस स्थिति में आएँ कि आप अपनी दुनिया बदलें और औरों के लिए दुनिया बदलने के लिए रास्ते बनाएं। बिल्कुल चॉइस इज योर्स, ये संभव है और ये आपको करके दिखाना है। ये मुझे कोई उसमें डाउट नहीं लगता है। Absolutely. So with that very inspiring message, we'll have to wrap up the conversation. But what's important and what's come out of this very extensive conversation we've had today is that recognizing, redistributing and reducing the burden of unpaid care work is something which is extremely essential for an equitable society that we've been talking about. So what's important is, as we move forward, let's all remember, and because you are the ones who are going to shape that future for us, let's remember that when we share the load, something that we've spoken so extensively about, we are not just strengthening our families or our societies, we are strengthening the country at large, something which is our ultimate goal of becoming a Viksit Bharat by 2047. So thank you so much to our guests and to everyone in the audience for joining us on She Leads, where we've put the spotlight not just on the challenges but the change makers who are leading by example. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर आने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हम सभी ने चर्चा की, उसी के साथ हम आज यही संदेश एक साथ साझा कर लेके जाएंगे कि कंधा से कंधा अब मिलाएं, कंधा से कंधा अब मिलाएं, घर आंगन से दफ्तर तक चलो एक साथ जिम्मेदारी निभाएं, ना कोई बोझ अकेले उठाएं और ना कोई पीछे रह जाए, बराबरी का ये सफ़र अब मंजिल की ओर बढ़ाते जाएं, ताकि लोड हो शेयर और सबकी हो केयर। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।